Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Belatut News, saudara. Sebuah perdebatan luar biasa antara ateis dan muslim terjadi di India dan menjadi viral di media sosial di kalangan masyarakat India khususnya ya. Debat antara Mufti Samail Nadwi dan tokoh ateis Javed Akhtar memicu terjadinya perhatian luas di seluruh India dan sekitarnya, saudara. Ini terjadi pada beberapa hari yang lalu, 20 Desember 2025, dengan tema yang menarik. Apakah Tuhan itu ada? Perdebatan yang berlangsung hampir 2 jam itu diadakan di Constitution Club di New Delhi dan berpusat pada pertanyaan apakah Tuhan ada. Di channel aslinya sekitar ditonton 5 juta viewer lebih. Kemudian di channel YouTube Mufti Samail Nadwi ditonton lebih banyak ya, 6 juta viewer. Namun yang menjadi perhatian adalah setelah terjadinya perdebatan tersebut, banyak komentar ataupun tanggapan positif dari warganet India dan menganggap bahwa perdebatan itu sangat luar biasa elegan, akademis, dan edukatif ya. Dan luar biasanya lagi, gelombang masuk Islam terjadi setelah perdebatan itu. Dilihat dari banyaknya komentar-komentar yang memuji Mufti Samail Nadwi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ateis dari Javed Akhtar. Dan banyak yang mengatakan di dalam komentar tersebut, setelah menonton perdebatan tersebut, dia masuk Islam. Wow, Masya Allah. Jadi acara tersebut dimoderatori oleh wartawan Saurabh Dwivedi, editor dari The Lalam Top ya, hampir 2 jam. Salah satu sesi dalam perdebatan tersebut adalah pertanyaan sang ateis Javed Akhtar yang bertanya kepada Mufti Samail, mengapa tidak disebutkan adanya dinosaurus di dalam kitab suci? Wow, pertanyaan yang menohok ya. Namun dengan tenang Syekh Samail Nadwi menjawab, ya Anda mengatakan bahwa dinosaurus tidak disebutkan dalam kitab suci, tetapi dinosaurus juga tidak disebutkan di dalam buku-buku sains, matematik, dan lain sebagainya. Itu tidak berarti bahwa kitab suci itu tidak berguna atau tidak berarti hanya karena tidak ada dalam kitab suci. Wahyu dan buku-buku kitab suci agama tidak berarti mengajari Anda untuk membuat sebuah reinkarnasi ya, dan lain sebagainya. कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आकर ये बताए कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। रिलीजन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुफ्तल है। Perdebatan sengit pun terus berlanjut tentang eksistensi Tuhan. Dalam 5 menit video yang akan kita tampilkan ini, bagaimana perdebatan sengit ya tentang eksistensi Tuhan, saudara. Namun yang kita perlu garis bawahi adalah efek dari perdebatan itu setelahnya adalah netizen-netizen dari India banyak yang berkomentar positif, bahkan banyak yang mengatakan setelah menonton perdebatan tersebut mereka memeluk Islam. Luar biasa, saudara ya. Inilah yang seharusnya terjadi, bagaimana perdebatan ilmiah ya, dan jika kebenaran Islam itu dipegang oleh ahlinya, seperti inilah efeknya, menjadi jalan pembuka pintu hidayah, saudara. Masya Allah. Nah, kira-kira apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है? यही है, मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। अरे भाई बिल्कुल, मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल चले तो उसके बाद क्लोज कर। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते?
ये मैंने आपको एक चीज बताई। दूसरी चीज, इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। बताइए। तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है। जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है, लेकिन अच्छा, चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल खुदा ने मतलब बनाया। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो इविल है, तो ये खुदा एक्चुअली इविल के साइड पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी नहीं, मैं बताता हूं। मेजॉरिटी में तो वो है। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? मैं बहुत- कोई भी जो मुंसिफ होगा, चाहे आपका अपना घर हो जिसके आप सबसे बड़े हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप चलाते हैं, वहां पर आप इविल रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग शरीफ हैं। मेरी बात सुनिए। क्या ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है? अगर- कि जब तक के कोई इविल नहीं होगा तब तक के शरीफ आदमी शरीफ नहीं लगेगा। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया, जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा। क्रिएटर ने इविल को बनाया है लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा। सुनिए मेरी बात, चलिए, एक- हाँ। लेट मी कंप्लीट सर। जी, जी। क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। जी। रेप को कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं? रेप इंसान के फ्री विल का नतीजा है। ये रेप कैसे गलत इस्तेमाल होता है? ये मुझे अब सुन लें, अब सुन लें। गलत इस्तेमाल होता है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, रेप कैसे गलत है? मैं बता रहा हूँ जी। कि जो इविल इस दुनिया में मौजूद है उसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका इंसान का अपना फ्री विल है। अब अगर कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है तो इसका गॉड का कसूर नहीं है, वो अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। और उसी के लिए जहन्नम बनाई गई है। ये फ्री विल का भी बड़ा चक्कर। आप जब कोई बुरा काम करते हैं या कोई बुराई होती है तो ये कहा जाता है कि ये फ्री विल है। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लेनेट। 7 बिलियन फ्री विल। और एक आदमी अपनी फ्री विल से मुझे देखिए, दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं। एक जो अकेले रहते हैं जंगल में और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग क्या कहते अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? हैं? आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड करेंगे। नहीं। अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज मानते हैं सर्टन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं। ये जो आईसिस वाले थे, इन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने सिंपल सवाल किया कि इविल को आप डिफाइन करते कैसे हैं? आगे वापस आइए। जी। आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो और हर एक को कोई आराम मिले। यही तरीका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है जिंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियां आएंगी। और अगर उसमें आप घर ले लीजिए ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वालदा भी हैं, 2 बहनें भी हैं, एक भाई भी है। अब इसमें कोई निजाम आपको चाहिए साथ में रहने का, और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बहीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि